عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ چلیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں 7ویں کلاس کا جنرل سائنس کا 5واں سبق، جس کا نام ہے غذائی اشیاء کی حفاظت۔ اس کا پہلا پارٹ۔ بچوں، آپ کی معلومات کی بنا پر پچھلی کلاس میں ہم جو پڑھے ہیں اس کی بنا پر یہ جدول مکمل کرنے کی کوشش کیجئے، ایک سرگرمی کیجئے، بہت آسان ہے، ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ غذائی اشیاء کے نام ہے اور ان غذائی اشیاء سے، ان ذرائع سے ہمارے جسموں کو حاصل ہونے والے مختلف غذائی اجزاء کون سے ہیں، اور اس غذائی اجزاء کی وجہ سے ہمارے جسم میں کون سا فعل انجام پاتا ہے، یہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جوار، گیہوں، باجرہ، چاول وغیرہ سے ہمیں کون سی غذائی اشیاء حاصل ہوتی ہے، کون سے غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں، اور ان غذائی اجزاء ہمارے جسم کے کس فعل کے لیے کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جدول مکمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ یہ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کوشش کیجئے ذرا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو پیچھے سبق میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پچھلے سبق میں اور پچھلی جماعتوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، معدنیات، ریشے دار اشیاء، پانی، یہ تمام اجزاء ہمارے جسم کی مناسب نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے جسم کی مناسب نشو و نما کے لیے ان سب غذائی اجزاء کی ضرورت ہے بچوں۔ کون کون سے؟ کاربوہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، معدنیات، ریشے دار اشیاء، پانی، ان تمام اجزاء کی ضرورت ہمارے جسم کی مناسب نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ غذائی اجزاء ہمیں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ ہم جو غذا کھاتے ہیں، جیسے کہ گیہوں، جوار، دالیں، چاول، ترکاریوں سے اور پھلوں سے، یہ تمام غذائی اجزاء ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر سمجھو بچوں، یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں اگر یہ خراب ہو یا کیڑے والی ہو تو کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ خراب ہو یا کیڑے والی ہو تو کیا ہوگا؟ غذا تو ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو سکتے ہیں بچوں، مختلف امراض ہو سکتے ہیں، ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غذا کی خرابی سے بچنا چاہیے، خراب غذا سے بچنا چاہیے۔ وہی سب چیزیں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ غذا خراب کیسے ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ دیکھیے، پہلے ہم پڑھیں گے غذا کی خرابی کے بارے میں، غذا کیسے کیسے خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی کتابوں میں مختلف تصویریں ہیں، دیکھیے، یہ دیکھیے، جب غذا گوڈاؤن میں اناج کا ذخیرہ وغیرہ کرتے ہیں یا گھروں میں وغیرہ، تو ایسے چوہے یا مختلف جانور آ کر اس کو خراب کرتے ہیں۔ یا شاپ پر، دکانوں میں آپ جب کھلی غذا کھاتے ہیں، کھلے میں رکھی ہوئی غذا کھاتے ہیں، وڑا پاؤ وغیرہ یا مٹھائیاں وغیرہ، تو اس پر مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں، برابر۔ پھر یہ اناج گر کر خراب ہوتا ہے زمین پر پڑ کر۔ پھل، ترکاریاں وغیرہ گندے مارکیٹ میں وغیرہ خریدی جائیں تو وہ اس طرح کیسے خراب ہوتا ہے، دیکھیے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے ماحول میں ہونے والے مختلف واقعات کی یہ تصویریں آپ کے کتاب میں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ اب غذا کی خرابی کی وجوہات دیکھتے ہیں، کیا کیا ہے۔ بعض وقت پھل اور پھلوں کے چھلکے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بچوں،
कुछ फल या फलों के छिलके, केला वगैरह के, एप्पल वगैरह के काले हो जाते हैं, सियाह हो जाते हैं। क्यों? कुछ चीज़ों में बू या बदबू आती है, फलों में या कुछ चीज़ों में बू आती है या बदबू आती है। क्यों होता है? ऐसी चीज़ों को अगर ख़राब चीज़ें या बदबूदार चीज़ें हम खाने लायक नहीं रहती, खा पाएंगे क्या हम? बदबूदार चीज़ें नहीं खा पाते, वो खाने लायक नहीं रहती। ठीक है बच्चों, तो ये क्यों होता है? बच्चों, कुदरत से हासिल होने वाले बाज़ चीज़ों में इंसान के अमल से खराबी पैदा होती है। कुदरती तौर पर जो हासिल होती है चीज़ें, उसमें बाज़ मौक़ों पर बाज़ चीज़ों में इंसान के अमल से क्या होती है? खराबी पैदा होती है। मसलन ज़्यादा पकाना, फलों को या खाना पकाते वक्त हम ज़्यादा पकाएंगे उसको तो उसके ग़िज़ाई अज्जा बर्बाद हो जाएंगे, या फिर फल ख़राब हो जाएंगे, यानी ग़िज़ा ख़राब हो जाएगी। नम जगह पर रखना, यानी जहाँ पर पानी या नम जगह है वहाँ पर अनाज स्टोर करना, महफूज रखना, उससे अनाज पर फफूंद वगैरह आ जाता है, ग़िज़ा ख़राब हो जाती है। नामुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए तो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर ज़ख़ीरा किया जाए तो भी ग़िज़ा ख़राब हो सकती है, ग़िज़ा का मियार ख़राब हो सकता है। ठीक है, और ग़िज़ा या अनाज नकल व हमल के ज़रिए भी ग़िज़ा की ख़राबी होती है, यानी जब अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है गलत तरीक़ों से, तो नकल व हमल के ज़रिए भी ग़िज़ा ख़राब होती है। क्या इससे आप चंद मिसालें दे सकते हैं? देखिए ग़िज़ा कैसे कैसे, या अनाज ग़िज़ा कैसे कैसे ख़राब होता है, ये कुछ बातें मैंने बताई, उसकी कुछ मिसालें दे सकते हैं? आपके देखने में आता है कभी? दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे मिसालें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो नबाती और हैवानी ग़िज़ा खाते हैं, हम जो नबाती और हैवानी ग़िज़ा खाते हैं वो अच्छी और आला मियार की होना चाहिए। अच्छी, साफ़ सुथरी, मियारी हालत में आला मियार की होना चाहिए, वरना हम किसी मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे। अगर हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो अगर आला मियार की या अच्छी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? हम बीमार हो जाएंगे, हम किसी मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे, या हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ग़िज़ाई अशिया का रंग, बू, बनावट, मियार, जायके में तब्दीली और इनकी मौजूद तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी ही ग़िज़ा की ख़राबी है। बच्चों, ग़िज़ा की ख़राबी मतलब क्या? ग़िज़ाई अशिया का रंग, बू, बनावट, मियार या जायके में तब्दीली और इनमें मौजूद तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी ही ग़िज़ा की ख़राबी है। मतलब ग़िज़ाई अशिया का रंग बदलना, बदबू आना, बनावट बदलना, जायके में तब्दीली होना, या उसमें मौजूद तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी, इन सब चीज़ों को ही हम कहते हैं ग़िज़ा की ख़राबी। आया समझ में बच्चों? ग़िज़ा की ख़राबी मतलब किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप छुट्टियों के दिनों में, तातीलात के दिनों में बाहर जाने पर अपने ख़ानदान या दोस्तों के साथ मुंह में पानी लाने वाली अशिया जैसे पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी
शौक से खाते हैं ना बच्चों। आप जब छुट्टियों में या तातील के मौके पर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आप ऐसी मज़ेदार चीज़ें खाते हैं बच्चों, खाते हैं ना। लेकिन बच्चों ये चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं, फ़रोख्त के लिए कहाँ रखी जाती हैं? क्या आपको इन चीज़ें देने वाले शख्स के हाथ साफ थे? इसलिए इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल किया गया है? क्या आप इन तमाम बातों के मुतालिक सोचते हैं बच्चों? हम जब घर के बाहर छुट्टियों में या तातीलात में घर के बाहर दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ घूमने जाते हैं तो हम बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं। वड़ा पाव, पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, पिज़्ज़ा खाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहाँ बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, जो शख्स इसे बना रहा है या बेच रहा है उसके हाथ साफ हैं क्या? क्या ये चीज़ें बनाते वक्त जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो साफ़ है क्या? क्या हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं बच्चों? सोचिए ज़रा, इन बातों के बारे में सोचा कीजिए और अपने घर वालों और टीचरों के साथ इस बारे में डिस्कस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए बच्चों। ये देखिए, इसी मौके पर मैं कुछ शक्लें दिखाता हूँ जो आपकी किताब में है। पानी पूरी, वड़ा पाव, मुख्तलिफ़ फल, ठीक है। तो जब भी हम बाहर खाना खाते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ तस्वीर में देखिए, कुछ फल आपको नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन से फल खाने लायक हैं और क्यों, और कौन से फल खाने लायक नहीं हैं और क्यों, ये ज़रा गौर से देखिए शक्ल, ठीक है। और मुझे कमेंट कर बताइए कौन से फल खाने लायक है और कौन से नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फलों का रंग सियाह मायल होना, मज़े में तब्दीली, गोश्त में खट्टी बू आना, मूंगफली के जायके में तब्दीली, ये तमाम तब्दीलियाँ अंदरूनी अज्जा की ख़राबी की वजह से होती है। यानी आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, आपको टेस्ट समझ में आया होगा कि कुछ फल सियाही माइल दिखाई देते हैं, उनके मज़े में तब्दीली होती है, गोश्त में कभी कभी खट्टी बू आती है, मूंगफली का टेस्ट कभी कभी बिगड़ जाता है अचानक, ठीक है। तो ये तमाम तब्दीलियाँ कैसे होती हैं? ये तमाम तब्दीलियाँ अंदरूनी अज्जा की वजह से ही होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खेत में अनाज वगैरह तैयार होते वक्त कई बार इनको नुकसान पहुंचता है। अब जब खेतों में अनाज पैदा होता है, आपको मालूम है, तो पैदा होते वक्त, तैयार होते वक्त इसको बहुत नुकसान पहुंचता है, बहुत किस्म के कई बार इनको नुकसान पहुंचता है, जैसे नामुनासिब अमल, गैर मुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गलत किस्म से नकल व हमल वगैरह की वजह से ग़िज़ाई अशिया ख़राब होती हैं, ठीक है। कुछ ग़िज़ाई अशिया मसलन दूध, गोश्त वगैरह तेज़ाबी या असासी होती हैं, ठीक है। ग़िज़ाई अशिया धातों के रब्त में आने से कीमियाई अमल के ज़रिए ख़राब होती हैं। तो बच्चों, कुछ दूध, गोश्त वगैरह जो तेज़ाबी या असासी अशिया होती है, ये ग़िज़ाई अशिया जब धातों के रब्त में आती हैं तो कीमियाई तामुल होता है और उसकी वजह से ये ग़िज़ाई अशिया ख़राब हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अक्सर औक़ात हवा, पानी
ज़मीन में मौजूद जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं ना बच्चों, खुर्दबीनी जानदार या कीड़े, इनकी वजह से ये चीज़ें ग़िज़ा में दाखिल होने से भी ग़िज़ा ख़राब होती है। यानी हवा, पानी, ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदार या कीड़े जब ग़िज़ा में दाखिल होते हैं तो ग़िज़ा ख़राब करते हैं और इनके वजह से ग़िज़ा ख़राब हो जाती है बच्चों। आया समझ में? तो बच्चों हमने देखा कि ग़िज़ा कैसे कैसे ख़राब होती है इन जनरल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ग़िज़ा की बर्बादी को और तफसील से ग़िज़ा की बर्बादी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ग़िज़ा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ज़ाय होती है आपने देखा है? सोचिए ज़रा, इस बारे में बताइए। बच्चों, हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के अनाजों, फलों, तरकारियों, मछलियों की अफजाइश, दूध से बनने वाले अशिया की पैदावार में बहुत तरक्की की है। हमारे मुल्क ने बच्चों साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज, फलों, तरकारियों, दूध से बनने वाली चीज़ों वाली अशिया की पैदावार में बहुत तरक्की की है। ठीक है, पहले साल में कितनी फसलें उगती थी बहुत पहले, अब कितनी फसलें उगती हैं? पहले फल का पर्टिकुलर सीज़न हुआ करता था, फलों के सीज़न में कुछ फल ही आया करते थे पहले, लेकिन अब देखिए बच्चों फलों की भरमार है बाज़ार में, बराबर मुख्तलिफ़ किस्म के फल हर हमेशा ये रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। कैसे बच्चों? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी पैदावार, इन ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में क्या हुआ है, बहुत तरक्की की है। इसके बावजूद बच्चों आज भी हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो रोज़ाना भूखे पेट सोते हैं बच्चों, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता, इन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता बच्चों। ऐसा क्यों? कि ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी भूखे पेट सोते हैं। तो इन हालात में हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इन हालात में हमारा पहला फ़र्ज़ है कि जिन मकामात पर ग़िज़ा ज़ाय होती है इसे रोकें बच्चों। आया समझ में? चलिए, क्यों ऐसा होता है? अब ग़िज़ा की बर्बादी के मुख्तलिफ़ किस्में देखेंगे बच्चों। ग़िज़ा कैसे कैसे ग़िज़ा की मुख्तलिफ़ बर्बादी के किस्में देखेंगे। अब उसमें पहला पॉइंट है ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी, यानी क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। मिक़दार की बर्बादी, ग़िज़ा की मिक़दार की बर्बादी कैसे होती है बच्चों? गलत तरीके से काश्तकारी करना, यानी काश्तकारी के गलत तरीके, जैसे मट्टी से बोना, बेकायदगी से मलनी करना, ये चीज़ें सुने हैं बच्चों? ज़रा कमेंट कर बताइए मुझे क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, गैर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा और तकसीम के गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना, यानी तकसीम करते वक्त, अनाज तकसीम करते वक्त दुकानों में वगैरह आप देखते हैं कि जब गोडाउन से माल दुकान में लाया जाता है, ट्रकों में से गोडाउन से दुकानों तक लाते हैं, तो किस तरह उसकी बोरियों में से अनाज गिरकर बर्बाद होता है, देखने में आया होगा आपके। और किसी रेशन या अनाज की दुकान में आप देख सकते हैं कि अनाज नीचे बिखरा पड़ा हुआ रहता है ना? तो ये क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड है, यानी क्या है, ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी, यानी ग़िज़ा जो चीज़ें हैं, अनाज वो नीचे गिरते रहता है, बर्बाद होते रहता है, बराबर गलत तरीक़ों के, नकल व हमल के तरीक़ों की वजह से, तकसीम करने के गलत तरीक़ों की वजह से
अनाज बर्बाद होते रहता है, ग़िज़ा बर्बाद होती रहती है। बराबर बच्चों। और इसी तरह से इज्तिमाई खाने के दौरान आप देखे होंगे बड़े बड़े शादी ब्याह में या इज्तिमाई खाना जहाँ होता है वहाँ कैसा होता है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ बर्तन में प्लेट में रख कर जाते हैं, तो इससे भी ग़िज़ा बड़े पैमाने पर ग़िज़ा की मिक़दारी ख़राबी होती है बच्चों। और गैर ज़रूरी इसरार से भी ग़िज़ा ज़ाय होती है। अब आप खाना खाते वक्त ज़बरदस्ती से किसी को डालते हैं ना, और थोड़ा लीजिए और थोड़ा लीजिए, उसका पेट भर गया तो वो ग़िज़ा वैसे ही प्लेट में रख कर चला जाता है। यानी ज़बरदस्ती इसरार से भी ग़िज़ा ज़ाय होती है बच्चों। इस वजह से इन सब चीज़ें जो अभी हमने पढ़े, इस वजह से ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी होती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाय होने वाली ग़िज़ा दूसरों को दी जा सकती थी बच्चों। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें तो कोई भूखे को खाना मिल सकता था। इसलिए ये ज़ाय होने वाली जो ग़िज़ा है दूसरों को दी जा सकती थी बच्चों। ठीक है, तो ये हमने पढ़े अभी ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी बच्चों कैसे कैसे होती है। ठीक है, अभी अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए अब अगली किस्म की ग़िज़ा की बर्बादी देखेंगे। बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी, यानी क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यानी ग़िज़ा की क्वालिटी में ख़राबी। बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी, इसमें क्या होता है बच्चों, ग़िज़ा की हिफाजत के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल, यानी ग़िज़ा की जो हिफाजत होनी चाहिए उसके हिफाजत करते हैं, उसका गलत तरीक़ों का इस्तेमाल, ग़िज़ा के हिफाजत के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल, यानी तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल, ग़िज़ा को देर तक पकाना, जैसे हम घर में ग़िज़ा पकाते हैं खाना वगैरह, उसको देर तक पकाना। तरकारियों को काट कर धोना, ग़िज़ा तैयार होने के बाद ग्राहक तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त का गलत अंदाज़ा, इन सब चीज़ों से ग़िज़ा की क्या होती है, बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी होती है। इसी तरह अंगूर आम वगैरह के नामुनासिब नक़ल व हमल भी बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी के असबाब हैं। ग़िज़ा का क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड कैसे होता है बच्चों, आमतौर पर हम तरकारियाँ काट कर धोते हैं, ग़िज़ा तैयार करने के बाद ग्राहक तक देर से पहुंचती है ग़िज़ा दुकानदारों की वजह से। तो इन सब चीज़ों से ग़िज़ा की क्या होती है, बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी होती है, यानी क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड होता है, यानी कि इसमें से ग़िज़ाई अज्जा कुछ जो हमें मिलने वाले रहते हैं तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी होती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आया समझ में, ग़िज़ा को देर तक पकाना, ग़िज़ा की हिफाजत के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करना, तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल करना, ग़िज़ा देर तक पकाना, तरकारियों को काट कर धोना, ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग़िज़ा की बिलहाज मियार ग़िज़ा की बर्बादी होती है। आया समझ में बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस सबक का पहला पार्ट जिसमें हमने ग़िज़ा की बर्बादी ये पॉइंट की मालूमात हासिल की है, यह अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे पार्ट में बच्चों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।